Good morning, friends. Today we are going to do concept of working capital cycle, right? So what it means basically, let's say working capital already we have studied, right? So you know very well now what is meant by working capital. So in simple terms, if you want to define, then working capital is called current asset minus current liability, right? And to start business, first we need raw material, right? So basically we need first of all cash, you can say, right? With the help of cash we'll purchase the raw material, right? Raw material will be processed, right? And it's not necessary that immediately it will convert into finished goods, so it will take time. And that duration between raw material to finished goods conversion, in between that portion is called WIP, right? So after WIP you will have finished goods, right? Once it is produced, after having finished goods, definitely will go and sell it, right? So in normal cases, to increase the sales we need to go for more and more credit sales, so debtors will arise, right? And finally they will make the payment. Fine, I've written cash, but instead of that you can say like creditors will be there. So we can modify this also if we want, but this is normal cycle. What we can say, after getting cash we'll go and pay to the creditors for the raw material, right, to whom we have purchased. Or maybe if we are purchasing on a cash basis, then what we can say, so a little bit will modify this. So after debtors, cash will be there, and cash is going to be paid to the creditors. From creditors again will purchase the raw material, and this cycle will continue. Fine. So this is called working capital cycle. तो basically अब ये है क्वेश्चन कि रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो इज इट नेसेसरी कि इमीडिएटली आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बन जाएगा? नो. तो मे बी इन गोडाउन इन स्टोर्स डिपार्टमेंट रादर वी कैन से रॉ मटेरियल मान लो कि 10 डेज तक रहता है एवरेज, उसके बाद इट इज ट्रांसफर टू दी प्रोसेस. फिर WIP जैसे बताया कि रॉ मटेरियल वंस यू पुट इनटू द मशीनरी, राइट, उसके बाद मशीन आपको फुल्ली फिनिश गुड्स करके देगा. तो तब तक जो मशीन में मटेरियल रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर जाके आप देखो तो इट्स कॉल्ड WIP. मतलब वो आपके लिए क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस. क्यों? बिकॉज इट इज नाइदर कंसिडर्ड टू बी मटीरियल नॉर कंसिडर्ड टू बी फिनिश गुड्स, राइट. तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस. तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कितने टाइम तक वो WIP में रहेगा? सो दैट इज साइकिल, प्रोसेसिंग साइकिल यू कैन से. तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इट टेक्स 8 डेज, राइट. तो 8 डेज के बाद इट विल बिकम फिनिश्ड. और फिनिश्ड बनने के बाद जरूरी है कि इमीडिएटली वी shall sell it, may not, right. मतलब कि it may take time. जरूरी नहीं कि जैसे ही बन गया फिनिश गुड्स विल बी एबल टू सेल इट फाइन दैट फुल नंबर ऑफ यूनिट्स. तो वहां पे भी टाइम लग सकता है. तो कब तक आपके पास फिनिश गुड्स रहेगा? कहाँ पे? इन वेयर हाउस और यू कैन से गो डाउन. सो लेट्स से ऑन एवरेज 5 डेज तक रहता है, राइट. देन डेटर्स. सो आफ्टर सेलिंग द फिनिश गुड्स to the customers, let's say credit basis पे बेचा है, then the debtors will be there. अब debtors आ गए तो obviously what will happen कि उनको we need to give credit period, right. तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए we are giving credit period of 25 days to the debtors. तो अब सबका टोटल कर दो, राइट. यहाँ पे कि जैसे 10 + 8 + 5, राइट. सिंप्लिसिटी के लिए मान लो कि ये भी 5 दिन रखते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो क्या हो गया? 10 + 5, 15 + 5, 20, 20 + 25, so will be 45. तो 45 डेज के लिए योर मनी इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड.
तो आप बोलोगे कि हमने तो क्रेडिटर से परचेस किया तो कैसे हमारे पैसे ब्लॉक हो गए। अरे भाई, क्रेडिटर से परचेस भी किया है, बट सामने पेमेंट भी तो करना है ना क्रेडिटर्स को। सो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, कि मटेरियल परचेस कर लिया, कोई और चीज परचेस करते हैं तो वहां पे भी रिटर्न कमा सकते हैं। सो दैट इज अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। तो या तो कैश में भी किया हो, लेट्स से कैश में किया है, तो देन इन दैट केस कि बाय नॉट इन्वेस्टिंग सच कैश एल्सवेयर वी आर लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज द ड्यूरेशन फॉर विच यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी। तो either borrowed money or your own money, for both the cases that amount is going to be blocked। तो कितने टाइम के लिए ब्लॉक हो गया? 45 डेज के लिए। अब उसके बाद आपके पास पैसे आएंगे एंड इट इज पॉसिबल फॉर यू टू पे टू दी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के लिए मान लो कि क्रेडिटर्स आर गिविंग अस क्रेडिट पीरियड ऑफ 20 डेज। तो मतलब क्या हुआ कि हमें 20 डेज के बाद पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मेरे पैसे ब्लॉक नहीं हो, इनफैक्ट किसी और के पैसे मेरे पास ब्लॉक हो चुके हैं। तो घूम फिर के नेट ड्यूरेशन क्या हुआ कि फॉर विच माई मनी इज गोइंग टू बी ब्लॉक। तो 45 डेज तो है ही, 10 + 5 + 5 + 25, और सामने मुझे क्रेडिट पीरियड मिल रहा है कितना? 20 डेज का। सो 45 - 25, सो दैट विल बी 25 डेज। तो ये मेरा हुआ वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल साइकिल, राइट। तो डू रिमेंबर कि वर्किंग कैपिटल साइकिल इज नथिंग बट द ड्यूरेशन फॉर विच योर मनी इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड, फाइन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आप करने जा रहे हैं, फाइन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दिस वन। Following information is forecasted by RS Limited for the year ending 31st March 2019. Balances at the end 1st April 18 and 31st March 19. So opening and closing balance, you know that very well. तो एक बार वापस याद कर ले कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए व्हाट वी नीड, डेज, ड्यूरेशन, मे बी वीक और मे बी मंथ्स, जो भी दिया है। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसे? वेलोसिटी बोलते हैं। रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में भी जब टर्नओवर रेशियोज पढ़ते हैं, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो वहां पे वो रेशियो आने के बाद वी टू गो फॉर वेलोसिटी। सो दैट इज द ड्यूरेशन, कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड वगैरह वगैरह, तो उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी और ड्यूरेशन, and on the basis of which we can calculate working capital cycle। तो यहाँ पे ये पूरा जो क्वेश्चन है अभी बेसिकली टर्नओवर रेशियोज बोलो उस पे ही डिपेंड है मेजोरिटी केसेस। तो उसके बेसिस पे फर्स्ट विल फाइंड आउट दोस रेशियोज, और रेशियोज के बेसिस पे क्या फाइंड आउट कर लेंगे? वेलोसिटी और ड्यूरेशन इन ईच केस, और उसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल साइकिल मिल जाएगा। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, WIP ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग है, क्रेडिटर्स के भी है, एनुअल परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑल क्रेडिट, राइट। फिर एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड एनुअल सेल्स। तो इतनी सारी चीजें हमें दी है। फिर लिखा है यू मे टेक 1 year इक्वल टू 365 days and you are required to calculate net operating cycle period, number of operating cycle in a year। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए व्हाट यू नीड, यू नीड वेलोसिटी। पर वेलोसिटी के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? व्हाट वी नीड? डिफरेंट टर्नओवर रेशियोज, राइट। तो कई लोग क्या करते हैं, एक ही फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर ले आते हैं। पर नॉर्मली एट द टाइम ऑफ टीचिंग रेशियोज ऑल्सो व्हाट आई फील ऑलवेज कि पहले रेशियो ढूंढ लो, टर्नओवर रेशियो, एंड बेस्ड ऑन टर्नओवर रेशियो ड्यूरेशन ढूंढो। दोनों को सेपरेट ही रखो, दैट इज ऑलवेज प्रीफर्ड, की जल्दी याद रहेगा। क्योंकि टर्नओवर रेशियो मैंने बहुत बार समझाया भी है कि टर्नओवर रेशियोज जब भी ढूंढो तो टर्नओवर इज ऑलवेज देयर इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या होगा? उसका एवरेज क्यू होगा। वो हमने रेशियोज में भी पढ़ा हुआ है, फाइन। सो वो सब कंसेप्ट अभी डेप्थ में वापस जाने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी स्टडीड। तो डू रिमेंबर, क्या याद रखना है कि पहले रेशियोज ढूंढ लो टर्नओवर के, और उसके बाद वेलोसिटी फाइंड आउट करो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अभी जा रहे हैं रॉ मटेरियल का है। तो कितने कंपोनेंट्स है वो हमें पता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो अकॉर्डिंगली हम रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, राइट। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं
रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, राइट। जैसे बताया कोई भी टर्नओवर रेशियो का टर्नओवर इज देयर इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो ढूंढ रहे हो उसका एवरेज। क्यों बता देता हूं, पढ़ा है फिर भी, रेशियोस में पढ़ाया था कि टर्नओवर मतलब सेल्स, जरूरी नहीं कि ऑलवेज सेल्स मतलब सेल्स का ही डेफिनेशन प्रॉपरली वहां पे अप्लाई हो। हर एक टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर का मीनिंग अलग अलग होगा, टर्नओवर विल हैव डिफरेंट मीनिंग। तो वो हम समझते हैं, पर एवरेज क्यों? तो आप फॉर एग्जांपल सेल्स लो, तो सेल्स पूरे साल का होता है, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो अब मैं रॉ मटेरियल से डिवाइड करूंगा, तो कौन सा रॉ मटेरियल? शैल आई टेक क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल और ओपनिंग बैलेंस? कौन सा? तो तकलीफ है वहां पे, क्यों? क्योंकि सेल्स पूरे साल का है। तो सेल्स जो होगा, मतलब इनके केस में, रॉ मटेरियल के केस में सेल्स क्या होता है वो पहले क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कि फॉर्मूला इज रॉ मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा हम लिखते हैं, राइट। तो अब यहां पे टर्नओवर का मीनिंग क्या हो गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि मटेरियल बेचते नहीं है, मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, राइट। मटेरियल कंज्यूम होगा तब जाके इट विल बिकम फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल के केस में रॉ मटेरियल का टर्नओवर क्या हुआ? मटेरियल कंजम्पशन। एंड यू नो दैट मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, राइट, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मटेरियल कंजम्पशन क्यों टर्नओवर है? तो उससे क्या पता चलता है कि जितनी बार मटेरियल कंज्यूम होगा उतनी बार रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। सो रॉ मटेरियल इज गोइंग टू बी converted into finished goods, so it is going to be turned into finished goods, right? So that's the reason why हम बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। तो यहां पे टर्नओवर का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये सब चीजें मैं रेशियो एनालिसिस में पढ़ा देता हूं, बेसिकली ये कंसेप्ट तो समझते हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब कौन सा कंजम्पशन? पूरे साल का, ऑब्वियसली। तो पूरे साल का जो कंजम्पशन है वो किसके बेसिस पे हुआ है? तो हम पहले एक डेटा यहां से ले लेते हैं क्वेश्चन से और फिर आगे समझाता हूं। ओपनिंग है 45,000 का, राइट। फिर क्लोजिंग है 65,356। एंड परचेज जो है, परचेज चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, टोटल परचेज चाहिए। और यहाँ पे लिखा है एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑल क्रेडिट, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 लाख रुपीज। 4,45,000 हो गया और माइनस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक। एक बार वापस चेक कर ले, 65,356, ओके फाइन। तो ये आपका आ गया है 379,644, ये आपका कंजम्पशन होगा। तो जैसे यहाँ पे लिख ले कंजम्पशन, तो कितना होगा? 379,644। तो ये पूरे साल का कंजम्पशन है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम कब होगा? कि व्हेन यू हैव दैट रॉ मटेरियल इनटू योर गोडाउन। तो मतलब मेरे पास अगर स्टॉक अवेलेबल है, देन एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट आई कैन कंज्यूम इट। तो क्वेश्चन ये है कि ये रॉ मटेरियल, और ये कंसेप्ट समझ लेना, हर एक टर्नओवर रेशियो के लिए सेम रहेगा। तो नेक्स्ट रेशियो में आई विल नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट, क्योंकि ऑलरेडी रेशियोज में हो जाता है। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन पूरे साल का है, राइट, वो कोई 1 या 2 या 4 महीने का नहीं है। तो अब डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्यों रहे? क्या ओपनिंग नहीं ले सकते? क्या सिर्फ क्लोजिंग नहीं ले सकते? ना, क्यों? क्यों एवरेज लेना है, राइट? तो क्वेश्चन ये कि एवरेज का मतलब भी क्या होगा? पहले तो व्हाट इज मीन्ड बाय एवरेज? एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, राइट? वो भी तो ढूंढ लें, इतना किया है तो।
45,000 plus 65,356 divided by 2. 55,000 plus 65,356 divided by 2, तो आ जाएगा आपका 55,178, राइट, 55,178। तो अब ये जो अमाउंट आया वो मेरा एवरेज स्टॉक है। तो क्यों एवरेज स्टॉक लेना है, जैसे कब से बोल रहे हैं? क्या ऐसा कंफर्म है कि 45,000 जो स्टॉक ओपनिंग में था उसमें से ही ये कंज्यूम हुआ है? नो, कॉमन सेंस बन भी सकता है कि कंजम्पशन का फिगर 379,644 है, राइट। तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा कुछ कंज्यूम हुआ है, राइट। तो कहां से हुआ है? कि ओपनिंग स्टॉक से भी हुआ है, इवन ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ ना कुछ परचेस किया होगा, वो भी तो यूटिलाइज हुआ होगा, राइट। और क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तो पर्टिकुलर दिन का है, पर वो क्लोजिंग स्टॉक भी आया कब? कि ओपनिंग और परचेस दोनों थे तब। मतलब सिर्फ क्लोजिंग लोगे तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जो क्लोजिंग था उसके बेसिस पे क्या ये बाद में जो बचा वो कंज्यूम किया है, कि सिर्फ ओपनिंग से किया है, व्हाट। तो आपको पता भी है कि मेथड भी हमारे पास फीफो एंड वेटेड एवरेज वगैरह, पर जो भी हो सिंपल सा कंसेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर मेरे पास एवरेज जो स्टॉक था वो कितना था। कि फर्स्ट डे मेरे पास स्टॉक था 45,000 का, क्या वही कंज्यूम हुआ? फिर वापस जो स्टॉक है उससे मैंने कंज्यूम किया ना। थ्रू आउट द ईयर मेरे पास जो एवरेज स्टॉक था वो जाके कंज्यूम हुआ है। कितनी बार कंज्यूम हुआ? तो अब जो आंसर आएगा वो तो 379,644 डिवाइड बाय 55,178, मतलब 6 पॉइंट आएगा 88। मतलब कितनी बार रॉ मटेरियल, जो एवरेज रॉ मटेरियल आपके पास था वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ 6.88 टाइम्स। पर कौन सा वाला मटेरियल, 45,000 वाला कि 65,356 वाला, कि 4 lakhs में से जो आया था वो कौन सा? तो ऐसे डिसाइड करना डिफिकल्ट है। सो इट इज बेटर टू गो फॉर एवरेज, कि इतना ऑन एन एवरेज मेरे पास स्टॉक रहता है जो हर बार कन्वर्ट होता है। कहां पे? फिनिश गुड्स में। तो कितनी बार पूरे साल में होगा? 6.88 टाइम्स। होप इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट, WIP टर्नओवर रेशियो। अब WIP के लिए यू मस्ट रिमेंबर कॉस्ट शीट। तो अभी कॉस्ट शीट ड्रॉ करने नहीं बैठते हैं, पर WIP का वैल्यूएशन करना हो तो यू नीड फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। कि जिसके बाद तो जैसे प्राइम कॉस्ट होता है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड विल गिव यू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ओपनिंग WIP प्लस करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं। तो यू कैन से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑल्सो, राइट। तो फैक्ट्री कॉस्ट इज योर टर्नओवर इन दिस केस। तो टर्नओवर का मीनिंग हर एक जगह पे अलग अलग है, राइट। डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। तो अब यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? डू वी हैव एनी डिटेल्स? तो सी, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना आपका, वही आपका फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। फाइन। तो ये कॉस्ट शीट लर्न करोगे तब ज्यादा पता चल जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद अल्टीमेटली हम उसमें एडमिन ओवरहेड्स ऐड करते हैं। कौन से? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। पर अगर वो नहीं है देन सेम विल बिकम योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इन एब्सेंस ऑफ डिटेल्स हम क्या बोल सकते हैं कि यही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वही हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। आ जाते हैं यहाँ पे, कितना है? 7,50,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। अब एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कितना होगा? तो अब हर एक का वर्किंग सेपरेट भी बता सकते हो या तो यहाँ पे ही कर सकते हो आप। तो ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितना है? 35 प्लस क्लोजिंग कितना था? 51,300 डिवाइड बाय 2। तो विद दिस जो रेशियो आएगा दैट इज WIP टर्नओवर रेशियो।
ठीक है, तो सो इट विल बी 7 लाख, ये एवरेज करके रख देते हैं। 43,150 बराबर। 17.38, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो। फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो में क्या लेंगे, COGS। क्यों, तो फिनिश गुड्स का कंसेप्ट यहाँ पे क्या होगा कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर एबल टू सेल योर फिनिश गुड्स। तो टर्नओवर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि फिनिश गुड्स हम कॉस्ट पे लेते हैं ना, राइट। तो उससे रिलेटेड कॉस्ट कौन सा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन डिवाइडेड बाय एवरेज stock of finished goods, right? So cost of goods sold, we need to check whether it is given. Yes, 9,15,000. तो 9,15,000 डिवाइड बाय एवरेज फिनिश गुड स्टॉक। कितना है एवरेज फिनिश गुड स्टॉक, तो है आपका 60,181 एंड 70,175। 60,181 प्लस 70,175 डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलिए, तो कितना होगा ये, $65,178। So what is the answer, 915,000 divided by 65,178, 14.04 टाइम्स, राइट। टाइम्स आगे लिखना है, अभी वो आप समझ लेना। देन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स को मतलब किससे है, क्रेडिट सेल्स से। तो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ऑल सेल्स ऑन क्रेडिट, ऐसा लिखा ही है, एंड द अमाउंट इज 11 lakhs, राइट। तो 11 lakhs डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स के लिए ओपनिंग डेटर्स कितने हैं, 112, 123 एंड 135। 112, 113, 123 प्लस डिवाइड बाय 2। चलो, तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, ऐसे ही आप कैलकुलेशन कैसे करना है समझ में आ चुका है। सो दिस विल बी 8.9 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटर्स का। अब बचा क्रेडिटर्स। तो 5 ही चीजें होगी ऑलवेज, ये मेनली क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो क्या बोलेंगे, क्रेडिट परचेज विच इज अवेलेबल, राइट, डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। क्रेडिट परचेज कितना है, 4 lakhs, जो हमने ऊपर भी लिखा था। अब क्रेडिटर्स चेक कर लेते हैं कितने हैं, ओपनिंग बैलेंस 50079 एंड 70469। 50079 प्लस 70465 डिवाइड बाय 2, तो 469 है नहीं, 469, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 60274। 6.64, ठीक है। तो ये सब चीजें रेडी हो गई, एंड नाउ सिंपली यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट, वर्किंग कैपिटल साइकिल, राइट।
तो वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए वी नीड ड्यूरेशन, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ढूंढते जाते हैं और वन बाय वन उसमें ही ये एडजस्ट कर लेंगे, तो कोई सेपरेट फिर बाद में लिखने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं, वेलोसिटी और ड्यूरेशन। तो रॉ मटेरियल के केस में वेलोसिटी कैसे ढूंढेंगे, दैट इज इक्वल टू 365 अपॉन रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मतलब इससे क्या पता चलेगा कि जैसे 10 टाइम्स आया तो 365 डिवाइड बाय 10 करोगे तो पता क्या चलेगा कि 10 टाइम्स मतलब पूरे साल में 10 बार होगा। पर वेलोसिटी से क्या पता चलेगा कि ड्यूरेशन बिटवीन 2 टाइम्स, जैसे टोटल 10 टाइम्स है तो फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम आएगा, तो फर्स्ट के बाद जो सेकंड टाइम है बीच में ड्यूरेशन कितना है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट। तो वो ड्यूरेशन पता चलेगा। तो कितना होगा यहाँ पे 365 डिवाइड बाय कितना था 6.88। फिर एक साथ में सब ढूंढ लेंगे। फिर WIP के लिए तो 365 डिवाइड बाय WIP टर्नओवर, राइट। कितना है WIP का 17.38, राइट। फिर आएगा आपका फिनिश गुड्स 365 डिवाइड बाय फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो, वो कितना है फिनिश गुड्स का 14.04, ठीक है। फिर फिनिश गुड्स के बाद विल हैव डेटर्स, डेटर्स का 365 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो था 8.9, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स 365 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जो भी लास्ट में हमने फाइंड आउट किया दैट वाज 6.64, करेक्ट, यस। सो नाउ विल गेट ऑल द थिंग्स, तो समझ में आता जाएगा आपको। तो 365 डिवाइड बाय 6.88, so will give you 53.05 days। तो इनिशियली चल सकता है जो आ रहा है वही लिखो, फिर बाद में हम कर देंगे और ऊपर हेडिंग में डेज ही लिख देंगे कि बार बार लिखना ना पड़े, राइट। देन 365 डिवाइड बाय 17.38 will be 21, right. Next 365 divided by 14.04, so 25.99, so 26 you can take, right. 365 divided by 8.9, so will be 41.01। तो आप सर्टेन चीजें इग्नोर भी कर सकते हो इफ यू वांट, जैसे 0.01 वगैरह आ रहा है। 365 डिवाइड बाय 6.64, 54.96, राइट। इनिशियली रखो फिर बाद में लगे तो यू कैन कन्वर्ट इट। तो 54.97 आ रहा है वैसे तो, ठीक है। अब देखो ये सब ऐड होते जाएंगे क्योंकि करंट असेट के कंपोनेंट है रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स, और यू कैन अंडरस्टैंड ये माइनस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे टोटल फिर उसमें से माइनस, क्योंकि क्रेडिटर्स का माइनस कर देंगे यार। ये जो आएगा आंसर दैट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका। तो 53.05 प्लस 21 प्लस 26 प्लस 41.01, तो टोटल आएगा 141.06 minus 54.97, so 86.09, or simply you can write 86 days also, there is no issue, fine। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। फिर पूछा है कि ऑपरेटिंग साइकिल, देखो तो क्वेश्चन जो था कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड वो तो ढूंढ लिया, फिर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर,
कितनी बार ये ऑपरेटिंग साइकिल आपका रोटेट होगा, तो ढूंढ लेते हैं वो भी कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। तो पूरे साल में 365 डेज और आपका पैसा नेट कितने दिन ब्लॉक रहता है, 86.09 डेज तक। तो ऐसा साल में कितनी बार होगा, तो आफ्टर एवरी 86 डेज योर मनी इज गोइंग टू बी ब्लॉक, मतलब नया साइकिल शुरू होगा, राइट। तो 365 डिवाइड बाई 86.09, तो ये हो गया आपका 4.24 टाइम्स। मतलब साल में ये कितनी बार रोटेट होगा, घूमेगा कितनी बार साइकिल, 4.24 टाइम्स, राइट। और अब पूछा है उन्होंने लास्ट पॉइंट जो है क्या है क्वेश्चन कि अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब उसके लिए यहाँ पे ध्यान देना है कि एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 950 का आपका, वैसे उतना रिक्वायर्ड नहीं है ये एमकॉम लेवल पे, बट स्टिल कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है 950 का, मतलब कि डे टू डे एक्टिविटी के लिए यू नीड हाउ मच, 9,50,000। गेटिंग कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कि डे टू डे एक्टिविटी के लिए यू नीड मनी 9,50,000। तो ऑब्वियसली अब वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होगा आपका वो कितना रहेगा, हाँ क्या पूरे साल तक 9,50,000 ब्लॉक हो जाएगा, पूरे साल का रिक्वायरमेंट 9,50,000 का है। तो क्वेश्चन इज कि क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पूरे साल का ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कितना है 9,50,000 का। डज इट मीन you need to block your money to the extent of 9,50,000 for the whole year? 9,50,000 रुपया आपके पूरे साल के लिए ब्लॉक हो जाएंगे? नो, क्यों ऐसा नहीं? तो सिंपल है कि आपका वर्किंग कैपिटल सिर्फ कितने टाइम के लिए ब्लॉक होता है, 86.09। उसके बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे वापस, वही पैसे वापस री इन्वेस्ट होंगे। तो समझते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन से वो ज्यादा समझ में आएगा। वर्किंग capital requirement that is equal to operating cost divided by number of operating cycle। तो ये है 9,50,000 डिवाइड बाय 4.24। चलो पहले आंसर ला देते हैं, कितना आएगा ये, इज 224057। मतलब क्या हुआ, पूरे साल का खर्चा 9,50,000 है, बट 9,50,000 इज नॉट गोइंग टू बी इन्वेस्टेड थ्रू आउट द ईयर। तो मतलब आज इनिशियली मैंने बिजनेस में 2,24,057 पैसे डाले, तो कितने टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएंगे वो, 86 डेज के लिए। फिर उसके बाद वापस मेरे पास आ जाएंगे, कैसे, वो पूरा जो साइकिल समझाया कि रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश वापस आ गया। अब वापस आ गया 224, या तो अभी थोड़ी देर के लिए सर याद रखो 2,24,000 मेरे पास वापस आ गया, वापस इन्वेस्ट होगा दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, एंड बाकी का 0.24 टाइम्स। ऐसा साल में रफली 4 टाइम्स ये पैसे मेरे रोटेट होंगे। तो कहने का मतलब वो 4.24 टाइम के बाद टोटल में 950 होगा, दैट इज फाइन, पर एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरा कितना रहेगा पूरे साल के लिए, 2,24,000 का। आई होप इट इज अंडरस्टूड, राइट। तो ये आगे भी एक कंसेप्ट में भी समझाया था व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग कैपिटल, कि जो डेटर्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो पूरे साल में नो डाउट मैंने क्रेडिट सेल्स किया हो 12 लाख का, बट डज इट मीन कि मेरे 12 लाख के डेटर्स हैं? नो, क्योंकि क्रेडिट पीरियड मान लो 1 महीने का है, क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है, पूरे साल का सेल्स 12 लाख है क्रेडिट सेल्स, तो 1 लाख ही मेरा इन्वेस्टमेंट है डेटर्स में। क्यों? क्योंकि आज मैंने बेचा 1 लाख का गुड्स, 1 महीने के लिए मेरा क्या हो गया, पैसा ब्लॉक हो गया। 1 महीने के बाद अगेन आई विल गेट माई मनी, फिर वापस वो बेचूंगा तो वापस री इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब इन टोटल मुझे 12 लाख की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 1 लाख ही चाहिए, कि 1 लाख से मेरे वो 12 बार रोटेट हो जाएगा पैसा। वैसा ही यहाँ पे भी है, फाइन। सो दिस इज ओवर। चलिए, तो तीनों 3 पॉइंट्स हो गए, एंड दैट्स फिनिश फॉर दिस कंसेप्ट वर्किंग कैपिटल साइकिल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।